और इसको बोलते हैं साइड्स। 3 साइड शेप्स क्या होती है? ट्रायंगल। मेजरिंग रिलेशन बिटवीन एंगल एंड लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्या मतलब हुआ? मेजरिंग द एंगल एंड लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आप 10th में पढ़ गए हैं उससे। फर्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ओके, measurement of angles. How to measure the angles? First, you know one end point fixed and another arrow extended up to infinity. एक पॉइंट फिक्स है और आगे वाला पॉइंट इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। देन दिस इज कॉल्ड रे। ओके, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं और रोटेट करके यहां आ गई ये रे here. Then it is called initial ray and this point is called vertex. This point is called vertex. It is called initial ray. तो ये वाली हो गई टर्मिनल रे। टर्मिनल रे, ओके। measuring initial to terminal in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction is positive angle. ओके, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे इनिशियल टू टर्मिनल रे, देन दिस एंगल इज प्लस थीटा. इफ वी आर मेजरिंग इनिशियल टू टर्मिनल रे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then this angle is negative. This angle is negative. So direction is very important. Initial to terminal, we are going to clockwise or anti-clockwise. Anti-clockwise जा रहे हैं तो प्लस और clockwise जा रहे हैं तो माइनस. ठीक है? Now next, how to find out the angle? First we discuss quadrant. Okay? पहले आप एक बार देखो, उससे आपको आइडिया लग जाए क्वाड्रेंट में. In up to 10th class you have discussed trigonometric angles. Every angle 0 to 90, between 0 to 90. When one circle is complete, then this is total circle is 360 degree. It means this one is 90, another is also 90, third is also 90 degree, and fourth part is also 90 degree. Each part. This 360 degree divided into 4 part, then one fourth part is equal to quadrant. 1/4 part is called quadrant. It means this is quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. We are going to anti-clockwise. Okay, clear or no? Here x and y both positive, here x negative, y negative. Okay, x and y negative, x positive, y negative. Okay, here both positive. आफ्टर 360, जैसे आप 360 से वापस जाएंगे वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा.
ठीक है, इसका मतलब 360 से बड़ा एंगल नहीं होता, अगर होता है तो उसको ब्रेक कर देते हैं हम, फिर वापस। ठीक है, आ गया समझ में इतनी चीज। ये आपके क्वाड्रेंट हैं 4। सिस्टम ऑफ मेजरिंग angles. Okay, system of measuring angles. System of measuring angles. System of measuring angles. There are 3 system. Grade system is obsolete, मतलब remove हो गया grade system. So we have a first is sexagesimal. Sexagesimal is also called degree system. Okay. Second is circular system. It is also called radian system. Okay, first is degree system. How to find out degree system? So listen carefully. These are all 4 quadrant. X dash, O, Y dash. ध्यान से सुनना. This complete equal to 1 right angle. ये यहाँ पे 1 right angle है. XOY is divided into 90 इक्वल पार्ट्स. क्या किया है? XOY डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स. 90 इक्वल पार्ट्स से उसमें डिवाइड किया है. ठीक है, 90 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 ऐसे करते जा रहे हैं. ठीक है, 90 इक्वल पार्ट्स. 1 राइट एंगल इस ये है 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए. ठीक है, इसका मतलब 1 राइट एंगल है. 1 राइट एंगल है, वो कितने पार्ट्स कर रखे हैं? 90. एक पार्ट्स को मैं बोल रहा हूं 1 डिग्री, तो 90 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री. इसका मतलब 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है. यहां से प्रूव हुआ कि जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. ठीक है, आपने पढ़ा है, लेकिन आया कैसे? ये रहा. 1 राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है. अच्छा, फिर इन्होंने फर्दर डिवाइड किया. फर्दर क्या डिवाइड किया कि अगर मान लो कोई भी एंगल है वो 90 से भी छोटा आ जाए, मान लो 1 डिग्री से भी कोई छोटा हो, तो इन्होंने क्या किया? ये 1 डिग्री है. 1 डिग्री is divided into 60 equal parts. 60 equal parts. 1 degree is divided into 60 equal parts. इसका मतलब है जो ये 1 डिग्री है इसको क्या किया? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 1 part equal to 1 minute and this is represented by the 1 dash. Okay, ये 1 part है, इसका मतलब 1 डिग्री है. 1 डिग्री है, उसको आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 60 में, और वो हो गया मिनट. ये लिखने का तरीका है. फिर फर्दर डिवाइड किया
कि जो ये 1 मिनट है, जो ये 1 मिनट है, 1 मिनट को क्या किया है बेटा, 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। इस बार क्या किया है, 1 मिनट को डिवाइड किया, पहले डिग्री को किया था, दिस इज 1 डबल डैश इक्वल टू 1 सेकेंड एंड 1 पार्ट इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 पार्ट इक्वल टू 1 सेकेंड, ओके, 1 पार्ट इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अब आगे ध्यान से सुनना इस चीज के लिए कि क्या हो रहा है। देखो, आप रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन इंपॉर्टेंट है। क्या आपने 1 राइट एंगल लिया, ठीक है, वो आया 90 डिग्री के इक्वल, ओके, फिर 1 डिग्री लिया, 1 डिग्री लिया, वो आया 60 सेकेंड, 60 मिनट के इक्वल, फिर 1 मिनट लिया तो वो आया 60 सेकेंड के इक्वल। आप ये 3 चीज याद रखें। कन्वर्ट कैसे करेंगे मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा। अगर आप स्मॉलर टू लार्जर जा रहे हैं, स्मॉलर टू लार्जर जा रहे हैं, देन डिवाइड, एंड लार्जर टू स्मॉलर आ रहे हैं, देन मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसे, मतलब आप डिग्री से अगर मिनट में आएंगे तो बड़ी वैल्यू से स्मॉल वैल्यू में आ रहे हैं, ओके, बड़ी वैल्यू से स्मॉल वैल्यू में आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्योंकि 1 घंटे है, अगर उसको मैं मिनट में चेंज करूं तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, या 1 सेकंड है, मैं उसको घंटे में चेंज करूं तो पहले डिवाइड करके मिनट में जाऊंगा, फिर डिवाइड करके घंटे में जाऊंगा, वो मेथड होगा, ठीक है, आवर्स में कन्वर्ट करने वाला। तो सेम प्रोसीजर यही लगने वाला है। क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है, सुनना आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ मिनट्स, क्या है, 4.5 डिग्री। 4.5 डिग्री गिवन है, उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। अब आपको पता है डिग्री से आप जा रहे हो मिनट्स में, ये डिग्री है, डिग्री से मिनट्स में जा रहे हो, डिग्री से मिनट्स में जा रहे हो, छोटा है या बड़ा है, ग्रेटर से स्मॉलर में जा रहे हो। ये तरीका याद रखो ताकि आपको समझ में आए। आप एक चीज और याद रखें कि जो ये डिग्री है, इसको आप कैलकुलेशन के लिए, याद रखने के लिए ऐसे बिहेव करो कि ये एक तरीके से आवर्स, मतलब घंटे के तरीके से काम कर रही है। अगर मेरे को इस आवर्स को वी आर कन्वर्टिंग आवर्स इनटू मिनट, इट मींस वी आर मल्टीप्लाइंग विद 60, ऐसे याद रखो। और मिनट को सेकंड में, मतलब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट से सेकंड में। आप डिग्री को एज ए आर बिहेव करो कैलकुलेशन में ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये लिखने में गलत है, कैलकुलेशन के लिए, याद रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ये आवर्स को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, इस डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, तो घंटे को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट, कितना हो गया 0, 6 5 33, 24, 27, 1 पॉइंट के बाद 270 मिनट्स, ओके, 270 मिनट्स। नेक्स्ट,
नेक्स्ट ना सेकंड पार्ट, कन्वर्ट 4.5 डिग्री इनटू सेकंड। सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से सुनना आप लोग। सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको आवर्स है, आवर्स में पहले मिनट में जाना पड़ेगा, मिनट्स, और मिनट्स के बाद आपको सेकंड में जाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आवर्स है, आवर्स में से आपको मिनट में, मिनट से सेकंड में। ग्रेटर वैल्यू ये लार्जर है, लार्जर वैल्यू से आप स्मॉलर वैल्यू में जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप 4.5 आवर्स को जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करोगे मिनट्स आ जाएगी। जैसे आप मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेकेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में, ये आपका प्रोसीजर हो गया। अब अपन आगे क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो, क्वेश्चन नंबर 2, find the quadrant in which the, देखो आपको मैंने बताया हुआ है एंगल वाला सिस्टम कि ये 0, ये 90 में ये 90 है, 90 और ऐड करेंगे तो कितना हो गया 180 में फिर 90 ऐड करेंगे तो 270 में 90 ऐड करेंगे तो 360 बोल दो या फिर 0 डिग्री बोल दो, एक ही बात। अब देखो 315, एक तो प्लस है तो मतलब क्लॉकवाइज में जाना है। 315 90 तक गए, 180 तक, 270, 360। आप 315 डिग्री दे रखा है, ये 270 से 360 के बीच में है यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे कहीं होगा ये एंगल ऐसे आएगा बेटा 315। डायरेक्शन ध्यान रखनी है प्लस और माइनस वाली। ठीक है, अगला है सेकंड पार्ट है अपने पास 870। जब भी एंगल 360 से ग्रेटर जाता है, ठीक है, 360 से ग्रेटर जाता है तो आप पहले उसको 360 में ब्रेक करो। ठीक है, क्या समझ में, 360 में ब्रेक करो। एक चक्कर लगाया मैंने, ये एक चक्कर लगा दिया तो ये कितना हो गया 360। फिर वापिस इसके साथ दूसरा चक्कर लगा दिया, यहीं पे वापिस आ गया, फिर वापिस 360 हो गया। ये कितना हो गया 0 2 720 हो गया। तो 720 को मैंने इसमें माइनस किया, 150 आ रहा है। तो अब मेरा टारगेट है 150 डिग्री एंगल बनाना है, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट करते ही वापस 0 डिग्री पे पहुंच जाऊंगा। ये तो मेरे को दिखाने का तरीका कैसे घूमा मैं। ठीक है, तो मैं यहां से चला 90 तक गया, ठीक है, 90 के बाद 90 से 180 के बीच में यहां पे कहीं 150 डिग्री होगा, तो ये एंगल हो गया 150 डिग्री। कहां से, यहां से लेके यहां तक। चाहे 150 डिग्री की वैल्यू निकाल दो, चाहे 870 की वैल्यू निकाल दो, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि 360 एक चक्कर कंप्लीट करने पे वापस 0 डिग्री पे ये एज ए बिहेव करेगा, 0 डिग्री की तरह आ गया, ये हट गया एक डिग्री। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। अगली चीज तीसरा है -45। जैसे नेगेटिव एंगल बोला हुआ है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। 0 डिग्री है, यहां 90 होता है, यहां आपको बताया था 270,
180, 360 भी बोलते हैं। 0 डिग्री है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो अपोजिट में देखो तो ये पूरा 90 बनता है, ठीक है। इसका मतलब है जैसे ही आप यहां पे गए तो आधी दूरी में 45 पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ठीक है। यहां से लेके यहां तक 90 है, उधर से घूम के आओगे तो ये 270 है, यहां से लेके यहां तक अगर ये आप इधर जा रहे हो तो ये -90, इधर गए तो ये -180, ये -270 और ये -360, उल्टा गए तो, और क्लॉकवाइज गए तो ऐसे, ठीक है। तो 0 से -90 के बीच में -45 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगली चीज आती है 1520, वही तरीका सेम। कैसे, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे पहले ये देखेंगे, शायद 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसके बाद कुछ एंगल आएगा। देखो ये आपके प्लस सॉरी माइनस है, उल्टा जाना पड़ेगा। पहला सर्कल कंप्लीट, ये हो गया 360, दूसरा सर्कल कंप्लीट 720, तीसरा सर्कल कंप्लीट 720 और 360 180 हो गया। मैं सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं, अगर 360 से कम आएगा तो देखेंगे। 4 नहीं, ज्यादा जा रहा है, एक बार और जाना पड़ेगा। फिर गए, फिर 180 360 0 14 4, तो अब आप देखते हैं 14 0 8 80 डिग्री आ गया, वो भी माइनस में। ये 0 था, ये -90 था, -80 जाना है, -80 यहाँ आगे पास में, ये लो -80 डिग्री, ये पूरा इतना चक्कर, ठीक है। आ गया समझ में बात, ये आपको तरीका लग गया होगा। देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, अगर क्वाड्रेंट की बात करो तो ये 4th में है, और ये कौन से में है, ये भी 4th में है, और बाकी पीछे जो किए थे वो देख लेना, ठीक है, मैंने ड्रॉप कर दिया है। नेक्स्ट सेकंड सिस्टम इज रेडियन। रेडियन या सर्कुलर सिस्टम, रेडियन और सर्कुलर सिस्टम, रेडियन और सर्कुलर सिस्टम क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पे आर रेडियस की ये ड्रॉ करता हूं, मैं आर रेडियस का ये सर्कल ड्रॉ किया मैंने, और जो ये यहां से इस जगह से ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, जरूरी नहीं है हम एक्स एक्सिस पे ही बनाएं, अलग से भी ले सकते हैं। सेम ये भी वही सेंटर से है, ये भी आर होगी, ठीक है। तो यहां से लेके जो यहां तक ए बी की जो ये सर्कुलर पाथ है, अगर ये डिस्टेंस भी मैं आर लेता हूं, क्या बोला, आर रेडियस का सर्कल बनाया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आर डिस्टेंस ली, इन दोनों को यहां से मिलाया, तो ये जो एंगल आया, दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। ऐसे दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। 1 रेडियन, इसकी डेफिनेशन क्या है, 1 रेडियन। 1 रेडियन का मतलब क्या है, 1 रेडियन का मतलब है ए आर रेडियस सर्कल, आर रेडियस सर्कल measuring, आर रेडियस सर्कल measuring एंगुलर लेंथ, इसी को बोलते हैं आर्क लेंथ, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। एंगुलर लेंथ आर में 1 रेडियन एंगल ऑफ between
these points। इसका मतलब क्या है, जिस रेडियस की, r रेडियस के लिए तो एंगुलर लेंथ भी कितनी लेनी है, r ही लेनी है। तो जब जो मेजर करेंगे वो एंगल कितना होगा, 1 रेडियन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप, ये लिख सकता हूं क्या मैं, 1 रेडियन ले रहे हैं, इसके आर्क लेंथ कितनी है, r। और अगर आप ये पूरा एंगल लो, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप बोल सकते हो, यहां लिख देता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं O और C, ऐसे लिख रहा हूं, देखना, एंगल AOB, मतलब ये O वाला एंगल, बीच वाला एंगल, डिवाइडेड बाय AB आर्क लेंथ। ये लिखने का तरीका, आर्क लेंथ को यू बना दो कि ये आर्क लेंथ, मतलब एंगल और उसके सामने की आर्क लेंथ इक्वल टू, ये थ्योरम है, देखना कैसे। फिर सेम, फिर मैं एंगल ले रहा हूं, एंगल AOC, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, AOC पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा हूं, तो ये पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट की कौन सी AC आर्क लेंथ है, ये पूरी आएगी। ठीक है, तो AOB तो कितना, 1 रेडियन है, AB आर्क लेंथ R है। उसके बाद AOC आर्क एंगल नहीं पता है, या 1 राइट एंगल होता है, 1 राइट एंगल, वैसे नहीं पता। AC देखो, टोटल 2 पाई r सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, पूरी 2 पाई r। अगर मैं इसका चौथा ही हिस्सा लूं, 1/4, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है ना, 1 2 3 4, 4 इक्वल क्वाड्रेंट है, तो मैंने आर्क लेंथ एक क्वाड्रेंट के लिए, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई r। मैं इसका 4th पार्ट ले रहा हूं, तो इट बिकम पाई r बाय 2। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पाई r बाय 2। ठीक है, मैं इसको UQ इधर भेज रहा हूं, 1 बाय r इक्वल टू पाई r बाय 2 इक्वल टू 1 राइट एंगल, r से r कैंसिल, यहां पे हो गया पाई बाय 2 इक्वल टू 1 राइट एंगल। ये रेडियन का रिलेशन आ गया। ठीक है, पहले रिलेशन आया था हमारे पास डिग्री का, अब आ गया रेडियन का। 1 राइट एंगल इक्वल टू, इसका मतलब अगर मैं यहां से लिखूं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 राइट एंगल इक्वल टू पाई। ओके, 2 राइट एंगल इक्वल टू पाई, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, देन 2 राइट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी 2 राइट एंगल के बराबर और ये भी 2 राइट एंगल के बराबर। क्या मतलब हुआ, अभी बताता हूं। ठीक है, अभी इसमें रिलेशन निकालेंगे हम लोग। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, अभी इतनी करते हैं। अभी आपने देखा कि 1 राइट एंगल इक्वल टू पाई बाय 2, देन 2 राइट एंगल इक्वल टू पाई होता है, 2 राइट एंगल इक्वल टू पाई होता है। तो कैसे करें, इसका मतलब अगर आप यहां पे 1 रेडियन निकालना चाहो, 1 रेडियन, तो कितना होगा। ठीक है, यहां से आपने एक छोटी सी चीज पहले सीखी थी कि आपने 1 राइट एंगल जो डिग्री के अंदर लिया था वो आ रहा था 90 डिग्री। ओके, इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिखाई देता हूं। रिलेशन बिटवीन
डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो ध्यान से सुनना, वो दे रखा है टू राइट एंगल इक्वल टू पाई, पाई बोलेंगे इसको, ठीक है। और टू राइट एंगल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, टू राइट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, टू राइट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। टू राइट एंगल इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, इसका मतलब यहां से आया पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका रिलेशन होगा, ठीक है। लेकिन इससे हमें सोल्व कैसे होगा, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो 60 डिग्री रेडियन में कितना होता है, कैसे पता चलेगा। तो आप देखो, पाई से डिवाइड करो, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। एक रेडियन इतना होता है तो 10 रेडियन कितना होगा, 50 रेडियन कितना होगा, या फिर या इसको उल्टा लिया, पाई अपॉन 180 इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 डिग्री रह जाएगा। 1 डिग्री इतना है तो 30 डिग्री कितना होगा, तो 30 डिग्री कितना होगा, तो 30 से मल्टीप्लाई 1 इतना है तो कैंसिल हो गया, 6 कितना आ गया, पाई बाई 6, ठीक है। इसका मतलब यहां से जो हमारे पास रिलेशन बना वो क्या बन गया कि अगर आपके पास डिग्री हो तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन हो तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, रेडियन मेजर, अगर मतलब आपको रेडियन निकालना है देन पाई अपॉन 180, और यहां पे क्या आया था, डिग्री, ठीक है। जब भी आपको रेडियन निकालना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना। जैसे आपको मान लो डिग्री में निकालना है तो इसको इधर भेज दो, 180 अपॉन पाई, वो सारे एंगल निकाल रहे हैं, 30 डिग्री निकाल चुके हैं, 45, देन पाई अपॉन 180 इंटू 45, तो ये कितना हो गया, पाई बाय 4, 60 डिग्री, पाई अपॉन 180 इंटू 60, ये कितना हो गया, 3 टाइम पाई बाय 3, जितना जैसे कट रहा है सारे एंगल निकल जाएंगे। Find in circular system, okay, then what to do, क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। आपने अभी देखा है रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। लेकिन जब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वो कंप्लीट डिग्री में नहीं गिवन है, डिग्री मिनट सेकंड गिवन है, डिग्री मिनट सेकंड में गिवन है। तो क्या करें, उसके लिए क्या है, हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन को, उसके बाद ही यहां पे रखेंगे, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन गिवन है वो डिग्री में गिवन है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवर्स से जाना है, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाएंगे तो इस बार डिवाइड करेंगे। आप ये देखो कि सेकंड को जब मिनट में डिवाइड करो, मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब अब ये मिनट बन चुका है कि नहीं बन चुका, इसको कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आया, ये आया 1/2 डिग्री, ये दोनों सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 5 डिग्री, सॉरी ये मिनट है, 5 डिग्री 37 एंड हाफ, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं इसको 5, ये ऑलरेडी मिनट है ही, ठीक है, और यहां पे लिखते हैं ऐसे, ये पूरा मिनट में बन गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, 5 डिग्री कितना हो गया, 60, 74 और 70
5 डिवाइडेड बाय 2 मिनट। अब हमें अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये डिग्री है, इसके साथ ले जाना है, डिग्री में ले जाना है, तो हम 5 तो ऐसे कैसे रहेगा 75, इसको किससे डिवाइड करना है 60 से डिवाइड करना है। 75/2 को 60 से किया तो इसके साथ ये हो गया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा, ये तो डिग्री था ही पहले, और ये अभी क्या बन गया, अभी डिवाइड करने की वजह से डिग्री बन गया, तो ये पूरा का पूरा एक साथ आ जाएगा। जो डिग्री है कितने से कट रहा है 4, 15 से काट दिया तो ये कितना हो गया 5, और ये हो गया 4 2 जा 8। अब इसको सोल्व किया, 8 5 जा 40 और 5 ऐड किया 45/8, ठीक है 45/8। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या रेडियन इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री, डिग्री जो वैल्यू लिए आप कैंसिल करते हैं, जो कैंसिल होता है वो 5 से हो रहा है, तो 5 से 9 टाइम, ठीक है 5 3 जा 15, 36, 6 5 जा 30, 9 1 जा 9, 9 4 जा, तो ये आंसर आ गया 5/4 इंटू ये 1/8। अब कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आंसर आएगा 5/32 रेडियन, ठीक है। ऐसे सी लगाना चाहो, नहीं भी लगा हुआ तो रेडियन में डायरेक्ट होगा, ठीक है। इतना टॉपिक है, ये इनिशियल नया चैप्टर आज स्टार्ट हो गया।